Those words reminded me of a quote by Vince Lombardi. Leaders aren't born, they are made, and they are made just like anything else through hard work. And that's the price we all have to pay to achieve that goal or any goal. Thank you, sir, for those propelling words. Now it's time to call upon our key speaker and our chief guest for today's event. My words won't do justice to his introduction, and as he is a man who has devoted his life to our protection. General VP Malik has served as the 19th Chief of Army Staff of the Indian Army for 3 years. He was Army Chief during the Kargil War. He has received the Ati Vishist Seva Medal and the Param Vishist Seva Medal for the distinguished service to the Indian Army and to the nation. It is a privilege for all of us to be among his presence today. I would like to request General VP Malik sir to please raise the occasion of Principal Sir, my colleagues, Mr. Kapoor, Vivek Kalpe, Chima, and respected teachers, and very dear children. Jai Hind. सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। कई महीने बल्कि मैं ज़्यादा हो गए, उससे भी ज़्यादा हो गया है टाइम when we spoke to children, इकट्ठे हुए children. You know, the classes were not running, so we never got a chance to speak to the children. So I'm so glad that your school has provided us this opportunity to come and speak to you. And I think one thing I must share that जब हम लोग आप लोगों की उम्र के साथ में बातचीत करते हैं तो हम भी अपने आप को यंग फील करते हैं. So that's the best thing. आज का विषय है लीडरशिप. सबसे पहले जो है लीडरशिप हमको कौन सिखाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर अपना एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में बताऊंगा. और जब हम शुरू करते हैं तो हम लोग अपने गुरु से बात शुरू करते हैं. वी ऑल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर गुरुज. ऑल ऑफ अस वी हैव. इन माय केस देयर वर 2 गुरुज एक्चुअली. जब आर्मी में थे तो मेरा गुरु एक फील्ड मार्शल मैनेक शॉ था. ही वॉज माई आईकॉन. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन आईकॉन? So every time I watched him, I spoke to him, I followed him. Whatever he said, I used to follow that very seriously, and sometimes also try and imitate, how he interacts with the people. I used to see him talking to जवान, तो वो उसकी लैंग्वेज में ही उसके लेवल के ऊपर ही बात करते थे. And I saw him talking to the king of Nepal and king of Bhutan, तो वो उसका लेवल दूसरा हो जाता था. So the way he interacted with people, he was my icon, and I would say that he still remains my icon. And the second reason, which is also the reason why I came so readily to your school and the way it spoke to me. Second guru, a second icon has been Swami Vivekananda. Because I have tried to follow the spiritualism that he teaches, the patriotism that he preached. And third, most important thing I found, he was also a very practical man. We were very, India I thought was very unfortunate to have lost him at a very young age of 39.
पर वो उस यंग एज में भी जो हम लोगों को सिखा के गए, नॉट ओनली टू इंडिया बट आई वुड से टू द होल ऑफ वर्ल्ड मैनी थिंग्स. So that is another person who has been my icon, and so I'm so glad that I'm here with you in this Swami Vivekanand Millennium School. एक चीज जो उनकी हमेशा याद रहती है, that is, he said, I'm an Indian and every Indian is my brother or sister. अगर वो फिलॉसफी हम उसको इस्तेमाल करें तो ये जो हमारे बीच में भेदभाव, जाति, ऑल दीज थिंग्स, वो नहीं रहेगी. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या SC, ST, ये जो बकवास चल रही है, आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, तो वो नहीं रहेगा. इस वेरी सिंपल वर्ड, आई एम एन इंडियन एंड एवरी इंडियन इज माई ब्रदर और सिस्टर. नाउ आमतौर के ऊपर मेरे से पूछा जाता है, व्हाई डिड यू ज्वाइन द आर्मी? आई थिंक आई शेयर इट विद यू. व्हेन आई वाज studying in 8th, 9th class, and that time we went to watch the Republic Day parade in Delhi. My parents were in Delhi, and so I saw the smart officers, smart men, and that was very impressive. So I realized this is one thing good. You could see the discipline, you could see the most important thing, the way they walked, the way they carried themselves. खड़े होकर, सीधी पीठ सीधी, मार्चिंग, बड़ा इम्प्रेसिव लगता था. और जो उनके बारे में सुनते थे तो वो कि भाई ये बड़े ऑनेस्ट हैं, बहुत बहादुर हैं. They're very brave people, which is a fact. Even today we have, if you count, the Bahaduri का इनाम in the Kargil war or anywhere else. Integrity मानी जाती थी, honesty मानी जाती थी, but इन सब चीजों को देख के one was very impressed. And I wasn't very good in my studies. I had to confess that. I was studying in 9th and 10th में. So my parents wanted me to become an engineer, but I thought कि ये जो दूसरा रास्ता है, that is probably easier for me. So I decided that I'll join the army and succeeded in going through my written examination, interview, etc. Those days we did not have girls in the army, but today I must remind you all that we have a large number of girls, and not only that there are a large number of girls and they are doing well, but I also must tell you, and I've seen it myself now, that gradually they are now getting better and better than the boys also, the men also. There are certain places where we still do not allow the girls, the combat fighting, infantry, armored force वगैरह अभी भी नहीं दे रहे. बट बाकी जहाँ पर जा रही हैं लड़कियाँ, चाहे वो इंजीनियर हैं या एयर डिफेंस में है या इंटेलिजेंस में है या अभी पहले हम लोगों ने उनको ऑफिसर्स लिया, नाउ वी आर टेकिंग दैट इवन इन दी अदर रैंक, जूनियर लेवल पर भी, और मिलिट्री पुलिस जहाँ पर डिसिप्लिन उनको सिखाना पड़ता है तो उसमें भी है. सो देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज for the girls also, and ये मैंने खुद देखा है कि लड़कियां जो हैं जो आती हैं तो बहुत मेहनत करती हैं, और उसको देख के नेचुरली जो अच्छा लगता है, और काफी फर्क पड़ गया है उसमें आदमी का. हम लोग लीडरशिप के बारे में बात करते हैं. पहले मैं बात ये बताना चाहता हूँ कि जो भी आप प्रोफेशन ज्वाइन करें, टीचर बने या आप इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या आर्मी में ज्वाइन करें, जो भी आप करें उसमें दो चीजें बहुत जरूरी हैं.
जो भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन, टीचर्स का भी अपना ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले है ह्यूमन कैपिटल, इंसानी की जो मानव, क्या बोलेंगे इसको, शक्ति, मानव शक्ति, ह्यूमन कैपिटल। और दूसरी है आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो या आर्ट के स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, टेक्नोलॉजी को नहीं भूल सकते आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर आजकल कोई काम होता नहीं। सो चाहे आप लड़ाई में हो या बिजनेस में हो या किसी और प्रोफेशन में हो, ये दो चीजें जो हैं उनको हमेशा याद रखनी चाहिए। इन दोनों चीजों में अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि जो मानव शक्ति है आपकी, ह्यूमन कैपिटल जो है आप में, वो ज्यादा जरूरी है। टेक्नोलॉजी भी जरूरी है पर ये ज्यादा जरूरी है। क्यों? हम लोगों ने आर्मी में सीखा था और अभी भी यही सिखलाते हैं, that the man or the woman behind the gun is more important than the gun. जब आप कंप्यूटर के ऊपर काम लेते हैं, कंप्यूटर से काम लेते हैं, तो अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, ठीक तरीके से उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। सो द ह्यूमन कैपिटल जो है, जो आपके बीच में जो मानव शक्ति है, दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। और जब हम मानव शक्ति के बारे में बात करते हैं तो लीडरशिप बहुत जरूरी होती है। जैसा विवेक बता रहे थे कि लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि कोई नेता अपना पॉलिटिकल नेता या इवन ए जनरल, उसका मतलब ये नहीं है। लीडरशिप का मतलब है कि चाहे आपसे दो भी पीछे आपने देख रहे हो, आपको उनसे आपने काम लेना हो, तब भी आप लीडर हैं। तो लीडरशिप हर एक को आनी जरूरी है। मुझे अफसोस ये है कि लीडरशिप के ऊपर हमारी किताबों में या इतना ज्यादा पढ़ाते नहीं है, प्राइमरी क्लास में या सेकेंडरी क्लास में। इसको एक साइंस भी हम कहते हैं और एक आर्ट भी वो कहते हैं। ये साइंस भी है और एक आर्ट भी। अब लीडरशिप के बारे में मेरे बहुत सिंपल 5 विचार हैं और ये मेरा एक्सपीरियंस था। आप कहते हैं 42 साल आर्मी में और उसके बाद में भी मैं काम करता रहा हूं, तो भी सबसे पहले मेरा ये विचार रहा है कि चाहे आपके नीचे 5 आदमी हो या आपके नीचे 1 करोड़ आदमी काम करने वाले, जो बेसिक चीजें हैं लीडरशिप की वो कभी बदलती नहीं, वो वही रहती है। जो आपने सीखा है शुरू से वो चीजें बदलती नहीं। बाकी आप नॉलेज के साथ में, एक्सपीरियंस के साथ में और चीजें सीखते जाओगे, लेकिन जो 4-5 बेसिक चीजें हैं और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसको नहीं बदलने देना। और वो जो है चीजें आपको क्लास में और घर में दोनों जगह मिलेंगे। सबसे पहले जो है नॉलेज बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। स्किल भी बहुत जरूरी है और ये इसके बारे में मैं बाद में भी बताऊंगा। तो नॉलेज भी है, स्किल भी है, लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज है, आप किस तरीके से बर्ताव करते हो, आपकी एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज्यादा गुस्से वाले हो या सिर्फ प्रेम वाले हो, कोई कभी गुस्सा ही नहीं कर सकता। किस तरीके से आप काम करते हो और काम लेते हो दूसरों से। आप छोटे भाई बहन से भी काम लेते हो कि नहीं घर में, तो वो भी एक तरीका ही है, एटीट्यूड है। अगर गलत एटीट्यूड से आप काम कराने की कोशिश करेंगे तो वो छोटा भाई या बहन वो आपकी बात नहीं मानेंगे। सो जो एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट। और मेरा अपना मानना यह है कि काम जब हम प्रोफेशन में जाते हैं
तो 70% एटीट्यूड और 30% नॉलेज काम में आती है। तो एटीट्यूड के ऊपर ध्यान दो, किस तरीके से आपने काम करना है और कराना है। अगर लीडर काम करा नहीं सकता तो फिर वो लीडर नहीं कहता। तो उस चीज को जरा जरूरी उसके ऊपर देखना। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है, पहले भी जो मेरे से पहले जो बातचीत कर चुके हैं, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या चीज है? कैरेक्टर है आपकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों को मिला के। हर एक आदमी के अंदर कुछ न कुछ अच्छाइयां तो होती ही है और बुराइयां भी होती हैं। अगर आप अच्छाइयों के ऊपर जोर दोगे और उनको ज्यादा सीखोगे और आपके अंदर अच्छाइयां ज्यादा हैं, ऑनेस्टी, सच बोलना, दृढ़ता के साथ में कॉन्फिडेंस, ये सारी जो चीजें हैं, बोलने की शक्ति, ऑल दीज थिंग्स आर नोन। इफ दोज आर बेटर देन ए फ्यू बुराइयां कैन बी कॉल इट, तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। और उस चीज को देखते हैं आपसे काम करने वाले पीपल हु आर वॉचिंग यू, दे वॉच यू ऑल द टाइम। व्हाट इज योर कैरेक्टर लाइक? अगर आपके कैरेक्टर में वो धब्बा देखते हैं तो बिलीव यू मी, दे विल नॉट फॉलो यू, दे विल नॉट एक्सेप्ट यू एज ए लीडर। So it is important to develop those good traits of character, honesty, speaking the truth, no double standard, आगे सामने कुछ और पीछे कुछ और। ये पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब कारगिल की लड़ाई चल रही थी तो एक दफा किसी ने मेरे से पूछा कि आपके पास तो हथियार कम है और एम्युनिशन ऐसी चीजें कम हैं, तो आप लड़ाई कैसे करोगे? तो मैंने उनका जवाब दिया, मैंने कहा कि वी विल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव, डोंट वरी, वी विल फाइट विद व्हाटएवर वी हैव। तो वो जो हमारी मिनिस्ट्री के अंदर वो रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग अस वेपन एंड इक्विपमेंट, उनको बुरा लगा कि जनरल साहब ने ये क्यों बोल दिया कि हमारे पास कमियां हैं। इसका मतलब है कि है हमारे पास कमी। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ में जाके मेरे बारे में चुगली की कि जनरल साहब ने तो ये बोल दिया। प्राइम मिनिस्टर ने मुझे एक दफा बुलाया कि जनरल साहब आपने ये बोला था। मैंने कहा हाँ। तो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब, मुझे कहा कि क्या वो आपका बोलना सही था? पब्लिक के अंदर बात कर रहे हैं, प्रेस में। दिस वाज द प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर आई सेड। सो आई लुक्ड एट हिम, आई सेड सर आई एम नॉट ए पॉलिटिकल लीडर, आई एम ए सोल्जर। और सोल्जर जो है वो हुक्म देता है अपने जवानों को, गो एंड फेस अ बुलेट, गो टू द प्लेस वेयर देयर इज शेलिंग गोइंग ऑन, and they will obey my orders only if they believe in me and they have confidence in me. If I have double standard कि पब्लिक में मैं कुछ और बोलता हूँ और असलियत कुछ और है, तो he will not obey my orders, and that I cannot afford, because I have to give orders for my troops to go and place the bullet, and I cannot indulge in double standard or double speak. So that is important. हम लोग कई बार, अच्छा हमको कोई देख नहीं रहा, आपको एज ए लीडर, बिलीव यू मी, आपको हमेशा जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं कि आप किस तरीके से हो, क्लास में बैठे हो, बाहर हो, कहाँ पर। Another thing that I want to mention here, the fourth thing I think is leaders will always accept challenge. ये शुरू से आपने आदत बनानी है। यू हैव टू, जो भी चैलेंज आपको मिलता है, यू कैनॉट अफोर्ड टू से कि मैं नहीं करूंगा या नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। सोचो समझो, उसका इलाज मिलेगा। अब हम लोग जब आपके ये बाहर नेचर ट्री, मैंगो ट्री के नीचे बैठे थे,
आप बता रहे थे, प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि जब कोई मुश्किल होती है तो वहां पर जाके टीचर के साथ में बैठ जाओ, आपको कोई ना कोई उसका आंसर मिलेगा. Every challenge has an answer, and every challenge must be accepted as an opportunity. कि here is an opportunity I have got. अगर आप अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हो तो वो दोबारा नहीं आएगी. So you must accept every challenge as an opportunity and think about it, how you can overcome that challenge. A leader will not say challenge. अब जब हमारी लड़ाई होती है पाकिस्तान के साथ में 1965 में भी और कारगिल के वक्त में, उन्होंने पहले हमारे ऊपर काफी, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किया, काफी उन्होंने किया था. अगर उस चीज को हम छोड़ देते तो क्या होता, आधा कश्मीर, आधा पंजाब का हिस्सा वो पाकिस्तान में चला जाता. बट वी डिडंट एक्सेप्ट दैट नो, वी हैव टू, we started off badly in Kargil war. We had a lot of casualties in the beginning, you know, because we did not know कि कहाँ पर वो आके बैठे हुए, कौन से पहाड़ के ऊपर, and वो पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए थे और हमको तो नीचे से अटैक करना था. But we did not give up and we kept hitting them, and ultimately we got the victory. Whether it was 1965 war or in Kargil war, we achieved what we wanted to achieve. We got the success. So never say no to a challenge. और लास्ट में जो मैं लीडरशिप के बारे में बात बताऊंगा, and that I think has also been spoken by, आपने ही बोला था that leaders are not born. Leaders are not born. भारतवर्ष में हर साल हमारी जो जनसंख्या है, आपको मालूम है कितनी बढ़ती है? ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या के बराबर हम हर साल बढ़ा रहे हैं. अगर ये बॉर्न की बात होती तो पता नहीं हमारे में कितने लीडर अच्छे हो जाते. लीडर्स आर नॉट बॉर्न. लीडर्स आर ए रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क. मेहनत कर, सबसे पहले मेहनत के बगैर नहीं कुछ बन सकता. दूसरा, मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस, चैलेंज को एक्सेप्ट करना है. आई मस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस. आई विल नेवर रिफ्यूज अ चैलेंज. तीसरा, अपॉर्चुनिटीज. चैलेंज के साथ में अपॉर्चुनिटी. कई खुशकिस्मत होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, कई थोड़ा नहीं होते, वो ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटी. अपॉर्चुनिटीज को ढूंढा भी जा सकता है. आप अपनी क्लास में ही काम देख लो, वहां पर आपको मौका मिलेगा एक कुछ काम करने का. कुछ अपने आप आपको बताया जाएगा, कुछ अपने आप सोच के आपको करना है कि ये मैं काम कर सकता हूँ, इसमें मेरी भी और मेरी क्लास की भी अच्छाई है. So confidence and getting an opportunity, and last is experience. Experience is gaining more knowledge. भगवद गीता का एक श्लोक है, मुझे संस्कृत में तो याद नहीं है, और उसका मतलब आपको इतना बताता हूं कि एक्शन, काम करना, वो बहुत जरूरी है. जब आप काम करते हो तो वो आपको नॉलेज देता है. और एक्शन इज सुपीरियर टू नॉलेज. ये बात जो है, अगेन वन ऑफ माय कलीग्स हैज मेंशन्ड, इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट. किताब के ऊपर पढ़ लेना, याद करके आपने जवाब दे देना और पास हो जाना, वो काफी नहीं है जब तक आप उस चीज को इम्प्लीमेंट, काम में इस्तेमाल नहीं कर सकते. और मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो प्लानिंग है हम लोग करते हैं, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज इम्प्लीमेंटेशन. किसी ने बोला कि काम शुरू करना तो आसान है, लेकिन काम की असलियत जो क्या है वो है इम्प्लीमेंटेशन. कंप्लीट करना कैसे होता है.
अगर आप उसको ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाते तो आप कोई चीज ठीक नहीं। तो जो भी काम करो, सो एक्शन और नॉलेज के अंदर हमेशा याद रखो कि एक्शन करने की आप आदत बनाइए, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो, बाहर जाएं, कोई भी हो, एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आजकल के हम लोग सुनते हैं बच्चे ये नहीं काम कर रहा, वो नहीं काम कर रहा, तो थोड़ा बुरा भी लगता है। आप नहा के बाहर आया, आपने तौलिया फेंक दिया, जूते फेंक दिए, फिर माँ या बाप बोलते रहते हैं कि आपने ठीक जगह पर क्यों नहीं रखा। वो सारी एक्शन की बात है। You have to learn this, and once you have that habit, then when you become senior, when you are in a profession, then you will always be interested in action. So action is more important. काफी हो गया, मैंने अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपको दो चीजें विवेकानंद के ही उनके जो शब्दों की है मैं बात बताना चाहता हूँ। If not phenomenal, I don't know what else to call the speech Sir just gave. Believe it or not, I'm still struggling to find the right words to properly describe how actuating his words were. Thank you so much, General VP Malik sir, for delivering such a remarkable speech.